Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good, safe, and healthy at home and doing study regularly. Yes, dear students, today I am Munish Yadav, PGT Economics from Suraj School Bhiwadi again here to discuss with you some important topics related to Chapter 9 Concept of Revenue. Yes, dear students, today is the last day for this chapter. Then after your May syllabus will be completed and in June we will start your revision. So dear students, let's proceed for the topic. We are studying chapter 9 concept of revenue. So as I told you in the first day beginning of the chapter that revenue means anything, yeah, whatever money up seller receive after selling the commodities, after selling the units of commodity. It means output या commodities को सेल करके जो भी एक सेलर को अमाउंट मिलता है that is revenue. Okay, and we had discussed about the profit, total revenue, marginal revenue, average revenue, and what are the formula to calculate all. And then after yesterday we had discussed about the relationship. So my dear students, relationship means that how total revenue and marginal revenue are correlated and how average revenue and marginal revenue are correlated. So dear students, for the purpose of this study we had divided price into two categories. फर्स्ट केस व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना है, जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा टी आर विल इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट. टी आर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा. ओके, और उस टाइम पर जब प्राइस कांस्टेंट है इट मीन्स प्राइस मीन्स ए आर, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस और ए आर सेम होते हैं. सो जब भी प्राइस कांस्टेंट होगा टी आर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा और एम आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. और सेकंड, अगर प्राइस कांस्टेंट है तो ए आर और एम आर दोनों इक्वल होंगे. ओके, सो ओनली सिंगल रिलेशन बिटवीन बोथ. ओके, with the help of table you can easily understand, and the diagram is simply given here. TR is a straight line 45 degree and ARMR is a straight line, horizontal straight line, because no change in price. Okay, and second case when price is not constant. अगर price constant नहीं है so बेटा price increase करके तो sell out नहीं कर सकते. मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस. प्राइस कम करके ही ज़्यादा आउटपुट बेचा जा सकता है. तो इसलिए प्राइस अगर कम होगा तो टोटल रेवेन्यू भी कम होगा. अब टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम होगा. तो उसमें कुछ इस तरीके का रिलेशन आ सकता है. व्हेन टी आर इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, सो एम आर क्या होगा, डिक्रीज होगा. व्हेन टी आर इज मैक्सिमम, जब टी आर मैक्सिमम होगा तो उस टाइम एम आर क्या होगा बेटा, उस टाइम एम आर जीरो होगा. व्हेन टी आर स्टार्ट डिक्लाइन, जैसे टी आर डिक्रीज होगा एम आर नेगेटिव होगा. ओके, क्लियर और नॉट. एंड बेटा टी आर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आर होता है, और एम आर अगर निकालना हो तो टी आर एन माइनस वन करके आप कैलकुलेट कर सकते हो. लुक एट हियर गिवन द फॉर्मूला. अब ए आर और एम आर, व्हेन ए आर डिक्रीज, जब ए आर डिक्रीज होगा एम आर डिक्रीज मोर देन ए आर. एम आर हमेशा ही ए आर से ज़्यादा डिक्रीज होगा. ओके, ए आर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ए आर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट एम आर में भी जीरो और नेगेटिव. एम आर जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. क्लियर. सो हियर आर द रिलेशन बिटवीन बोथ. सो for today we will discuss one more topic, that forms revenue curve in different market. Yesterday I told you that we heard about earlier that market means जहाँ से हम सामान खरीदते हैं बेचते हैं, but my dear students it is also divided into different categories. So normally market divided into 4 categories, but now we are studying 3 categories, because in the fourth category that is oligopoly, curve formation is not possible there. अब curve formation वहाँ possible नहीं है, और we are studying curve, revenue curve, so there is no use of that market. So now first is perfect competition. Perfect competition means it is that market where homogeneous product available. Homogeneous means जो shape, color, size सब चीज़ों में एक जैसा है. and second, price भी constant होगा. it means no change in price. प्राइस फॉर एवरी बायर रिमेन्स सेम. ओके, अब मोनोपोली मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर वन सिंगल सेलर इज़ अवेलेबल. बेचने वाला एक है एंड ही कैन चेंज प्राइस अकॉर्डिंगली, वो प्राइस को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है. नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक. ये रियल मार्केट है जो कि आप देख रहे हो. आप पेन लेने जाओ सो यू कैन बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन. टूथपेस्ट आप डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हो. क्लोथ्स आप डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हो. शूज़ आप डिफरेंट टाइप्स के ले सकते हो. स्कूल बैग्स. सो दिस इज़ द रियल मार्केट वेयर homogeneous products are not
अवेलेबल, बट सब्सटीट्यूट गुड्स आर अवेलेबल. अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट पसंद नहीं आता तो यू हैव ऑप्शन टू चूज़ फ्रॉम द अदर कंपनीज. ठीक है, आप अदर कंपनीज का प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक, जहाँ सेलर भी बहुत ज़्यादा है, बायर भी बहुत ज़्यादा है, सबका सामान अलग अलग है, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, कलर शेप सब अलग है, और सबका प्राइस भी अलग अलग है. ओके, सो फर्स्ट मार्केट हम चलते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहाँ बहुत सारे सेलर हैं. अंडर परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज़ अ प्राइस टेकर. ओके, क्योंकि जो इंडस्ट्री का मतलब होता है बहुत सारी फर्में मिलकर एक ग्रुप बनाती है, उस ग्रुप को ही इंडस्ट्री कहते हैं, और प्राइस डिसाइड बाय द इंडस्ट्री. तो सारी फर्मों ने जो प्राइस डिसाइड किया है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल फर्म फॉलो द प्राइस, उस प्राइस को सारी फर्में फॉलो करेंगी. तो फर्म को यहाँ पर प्राइस टेकर बोला गया है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, सिंपली यहाँ प्राइस कांस्टेंट होगा क्योंकि प्राइस विल नॉट चेंज. तो इस मार्केट में जो आपका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. जब प्राइस कांस्टेंट है, एक अकेली मार्केट है जिसमें प्राइस कांस्टेंट होगा, और दिस इज परफेक्ट कंपटीशन. और व्हेन प्राइस कांस्टेंट, ए आर कांस्टेंट, टी आर इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रेट, एंड एम आर इक्वल्स टू ए आर. यहाँ पर ए आर किसके इक्वल होगा? एम आर के इक्वल होगा. लुक एट द मार्केट. और डायग्राम वही होगा, सिंपल, आ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन. आउटपुट, रेवेन्यू, प्राइस और ए आर इक्वल होते ही हैं, एम आर भी इक्वल होगा. सेम प्राइस पर आप कितना आउटपुट सेल आउट कर सकते हो. ओके, क्लियर. सेकेंड इज मोनोपोली मार्केट. मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर है, पूरा प्राइस पर कंट्रोल है, बट बेटा प्राइस कम करके ही ज़्यादा आउटपुट सेल कर सकते हैं, प्राइस बढ़ाकर ज़्यादा आउटपुट सेल नहीं हो सकता है. सो इट मीन्स लोवरिंग द प्राइस इज़ द बिगेस्ट ऑप्शन हेयर. तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा, प्राइस कम हो रहा है, देखो 10 से 9, 8, 7. ओके, टी आर फिर हमने मल्टीप्लाई करके टी आर निकाल लिया, एम आर निकाल लिया. सो जब भी ए आर डिक्रीज़ होगा, एम आर उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. सो देखो, ए आर डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन एम आर उससे ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, क्लियर और नोट. दोनों ही जो डिमांड कर्व है, रेवेन्यू कर्व है, एवरेज रेवेन्यू कर्व है, वो बिल्कुल फ्लैटर है. क्लियर. फ्लैटर, ये स्टीपर गिवन है. स्टीपर मीन्स बिल्कुल झुका हुआ. फ्लैटर होता है जो थोड़ा सा बैलेंस होता है, ये है बिल्कुल ही स्टीपर, एकदम झुका हुआ. ओके, सो नेक्स्ट इज मोनोपोलिस्टिक. मोनोपोलिस्टिक है बेटा जहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, नॉट होमोजीनियस बट सिमिलर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल. सिमिलर मीन्स एक जैसे ही हैं. अगर आपके पास एक ब्रांड के शूज़ आपको पसंद नहीं आ रहे तो यू कैन बाय फ्रॉम द अदर ब्रांड, आप दूसरे किसी ब्रांड से चूज़ कर सकते हैं. सो यहाँ पर प्राइस कम होगा लेकिन प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. ओके, जैसे 10 से 9.5, 9.5 से 9, 9 से 8.5, फिर 8, ऐसे. देन टी आर और एम आर, प्राइस यहाँ भी कम हो रहा है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, वहाँ 1 रुपीज़ का डिफरेंस था, यहाँ 0.5 रुपीज़ का है. ओके, सो ए आर तो इसमें भी डिक्रीज़ होगा, और जब ए आर डिक्रीज़ होगा तो एम आर उससे ज़्यादा डिक्रीज़ होगा. सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो रेवेन्यू कर्व है एज़ कंपेयर द मोनोपोली मार्केट, यहाँ देखो. ओके, लुक एट हियर, ये फ्लैटर कर्व है और यहाँ पर क्या है? स्टीपर है. सो आज का जो क्वेश्चन है टोटली वो यही बेस्ड है, वाई रेवेन्यू कर्व इज स्लोप्स डाउनवर्ड इन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो इसका 1 लाइन में मैं आपको आंसर बताना चाहूँगी, बिकॉज मोर आउटपुट कैन बी सोल्ड बाय लोवरिंग द प्राइस. ओके, प्राइस को कम करके ही ज़्यादा आउटपुट बेचा जा सकता है. दैट्स वाई रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. क्लियर. फर्स्ट आंसर इज क्लियर. सेकेंड, वाई रेवेन्यू कर्व इज मोर इलास्टिक इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन देन मोनोपोली मार्केट. मोनोपोलिस्टिक में फ्लैटर है, ओके, और मोनोपोली में स्टीपर है. ये देखिए, ये परफेक्ट कंपटीशन है, एक ही साथ दे रखा है. ओके, ये तो परफेक्ट कंपटीशन है, सो स्ट्रेट लाइन. ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, फ्लैटर है, और ये मोनोपोली मार्केट है एम से, दैट इज़ स्टीपर, एकदम झुका हुआ है. सो क्या रीज़न है इसमें? तो इसका रीज़न यही है बेटा, बिकॉज इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल. क्लोज सब्स्टिट्यूट्स जो अवेलेबिलिटी है उसी वजह से जो रेवेन्यू कर्व है वो फ्लैटर है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, और मोनोपोली में स्टीपर है. सो दिस इज़ द गिवन आंसर. क्लियर. समझ आया आपको? सो माय डियर स्टूडेंट, it's all about today, so you must know about that revenue curve are different in different markets. So dear student, I hope understand all the points. So beta, do your work in fair notebook, and for the queries you can call me and send messages also. God bless you.